वेलकम वंस अगेन बेटा टू द यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। तो अब इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.1. We will start with the question number 10 because we have left at the question number 9 in the previous video. So in question number 10, what we have to find out, what we are given. First of all, let's see what we are given here is there are two poles having equal heights like AB and CD, which are standing on the either side of the road, which is 80 meter wide. The road is 80 meter wide and there is a point E in between the road, and the angles of elevation of the top of the towers from the point E are 30 degree and 60 degree. And as we all know, the angle of elevation to the pole which is closer to the point E would be greater than the second pole. So the angle of elevation would be here would be 60 degree and it would be 30 degree in case of the pole CD. So let कर लेते हैं बेटा हम AB is equal to CD is equal to HB, height of two poles, comma PD is equal to 80 meter, be the width of road, and E be a point on ground that is road. सपोज रोड पे आपके पास एक पॉइंट है जिसे हम क्या ले लिया E. हमें बेटा what we have to find is height of the pole. First thing that we have to find is height of the two poles, that is what is the value of H, and then what we have to find is what is the distance between the point E and the two poles. Like suppose BE, if we consider BE as X, then DE would automatically would be 80 minus X. It would be 80 minus X. So now let BE is equal to X, therefore DE would be 80 minus X. Also angles that we are given, angles of elevation are, first is angle AEB 60 and the rest is angle CED which is 30 degree. Now what we have to do, we have to find the value of H and X. So first of all बेटा अगेन से वही कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि जो आपको निकालना है उसे ऊपर रखते हैं. अब हाइट दोनों में सेम है तो अगर दोनों से हाइट निकालें उसे इक्वेट कर दें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा. सो लेट अस गो विद द राइट ट्राइंगल फ्रॉम राइट ट्राइंगल ABC. ABC से बेटा आपको AB फाइंड करना है. सो AB को आप ऊपर रख लेंगे, AB को आप न्यूमरेटर कंसीडर कर लेंगे और उसके बाद आपको BC डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा. सो दिस इज परपेंडिकुलर upon base, perpendicular upon base, that is tan 60. H upon X is equal to tan 60 which is root 3. It gives the value of H is equal to X root 3. Take it as equation number 1. आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए बिकॉज यहाँ से आपने हाइट को डिस्टेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया. तो H आपके पास किसके को आ गया, X इंटू अंडर रूट 3. अब इन द सेम वे बेटा अगर हम दूसरे ट्राइंगल, इन द सेम वे वी प्रोसीड इन द ट्राइंगल फ्रॉम राइट ट्राइंगल CDE. अब अगर CDE की बात करें हम तो वंस अगेन यहाँ से भी हमें हाइट फाइंड करनी है. CDE हम इसे न्यूमरेटर कंसीडर कर लेते हैं, DE को डिनोमिनेटर कंसीडर कर लेते हैं. Then it would be perpendicular upon base, that is tan of 30 degree, tan 30. Now CD, H upon DE, D is 80 minus X and tan 30 1 by root 3, 1 by root 3. So बेटा अगर आप कंसीडर करो H की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 तो आपने कितनी निकाली है, X अंडर रूट 3 अपॉन 80 माइनस X इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3. ये कहाँ से यूज़ किया आपने, फ्रॉम फर्स्ट.
Now under root 3 x into root 3 it gives 3x. X root 3 into under root 3 gives us 3x. 80 minus x into 1 gives 80 minus x. So यहाँ से बेटा अगर हम फर्दर सिंप्लीफिकेशंस करते हैं यहीं पे तो 3x plus x is equal to 80, that is 4x is equal to 80, that is x is equal to 20. x कितना आ गया 20 डिग्री. So using x is equal to 20 in equation number 1. अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करोगे तो आपके पास h जो आपको हाइट फाइंड करनी थी वो कितना आ जाएगा x रूट 3 दैट इज़ 20 रूट 3. देखो हाइट ऑफ टावर, आपको एक तो हाइट ऑफ टावर निकालनी थी, टावर या फिर पोल्स एज वी आर गिवन आइदर टावर्स और पोल्स विच इज़ 20 रूट 3 मीटर. And after that what we have to find the distance of point E from the poles, that is from AB and BD, that is we have to find BE and DE. So BE here is x which is 20 and DE is 80 minus x, that is 80 minus 20 which is 60 meter. So this is your question number 10. Question number 10 from exercise 9.1. Now let's start with the question number 11. Question number 11. A TV tower which is standing vertically on the bank of a canal. TV tower having height suppose h is standing vertically on the bank of a canal BC, and from a point on the other bank directly opposite to the tower, उसी कैनाल के दूसरे किनारे से जो बिल्कुल उसके अपोजिट था वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना दिया 60, एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे बी और सी को ज्वाइन करती जो लाइन है उसी से 20 मीटर की दूरी पे एक और पॉइंट है आपके पास डी. द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फ्रॉम हेयर इज 30 डिग्री. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. आपको बेटा क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द टावर. सो वी हैव टेकन हेयर ए बी इज इक्वल टू एच. लेट isolate h as the height of the tower. AB is equal to h be the height of the tower. BC is equal to x be the width of the canal, because we have to find the height of the tower and the width of the canal. So BC, let us consider BC as 60, and C and D are 2 points on the opposite bank such that CD is equal to 20 meter. CD कितना दिया आपको 20 meter, and angles of elevation are ACB 60, ADB 30. ADB 60, ADB 30. So now let's start with the question. Once again here we have two triangles, ABC and ABD, and H height is common in both the triangles. So let us go for H further. So from right triangle ABC आपको H फाइंड करना है, दैट इज़ AB. उसे ऊपर न्यूमरेटर बना लेते हैं. BC को अगर हम डिनोमिनेटर कंसीडर करेंगे बेटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या आ जाएगा tan 60. So this is h, BC is the width which is x, tan 60 root 3. From here we have the value of h as under root 3 into x or x into under root 3. Take it as equation number 1. So यहाँ से h की वैल्यू आपके पास क्या आएगी बेटा under root 3 into x. In the same way we can proceed for the right triangle ABD. From right triangle ABD, वंस अगेन ए बी दोनों में कॉमन है तो ए बी को ही फाइंड करेंगे हम, विच इज़ हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस हेयर इज बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज बी डी इज tan, so tan of 30 degree because angle here is 30 degree. Now AB, once again this is H, and BD we can break BD into its two components, BC plus CD, BC plus CD is equal to tan 30 that is 1 upon under root 3. अब अगर बेटा हम h की वैल्यू यूज़ करें फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज़ x रूट 3, तो हम यहाँ पे h की जगह यूज़ कर सकते हैं x इंटू रूट 3 अपॉन BC. BC इज़ वट x प्लस CD. वट इज़ CD फ्रॉम द फिगर 20 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3. सो ये जो वैल्यू हमने x की यूज़ की कहाँ से की, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. x रूट 3 इंटू 3, this is 3x is equal to x plus 20. So 3x minus x is equal to 20.
2x is equal to 20, x is equal to 10. It gives us the value of x as 10. So using x is equal to 10, using x is equal to 10 in equation number 1, h आपके पास क्या आ जाएगा, x रूट 3 दैट इज़ 10 रूट 3. तो बेटा आपको हाइट निकाली थी टावर की, तो फॉर हाइट ऑफ टावर आपके पास कितना आ गया, 10 अंडर रूट 3 मीटर. उसके बाद आपको विथ निकाली थी कैनाल की, विथ ऑफ कैनाल जिसे आपने x लिया था, वो x आपके पास कितना आ गया, 10 मीटर. 10 मीटर. So this is your question number 11. Okay. Now let's proceed for the question number 12 now. So question number 12 is a unique question of its type because अभी तक बेटा जितने भी क्वेश्चंस आपने किए एक्सरसाइज 9.1 के, उन सब में हमने सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ा. सिर्फ इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में ही सिर्फ हम जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में. व्हाट वी आर गिवन हियर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर is 60 degree and the angle of depression of the bottom of the tower is 45 degree. We have to find the height of the tower. आपको उस पूरे टॉवर की हाइट क्या है बेटा वो फाइंड करनी है, पूरे टॉवर की हाइट. तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ बेटा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वहाँ से सेम अगर एंगल ऑफ एलिवेशन को लिया जाए then these angles form alternate interior angles and they are equal because हमारी horizontal line और ground को इन क्वेश्चंस में अक्सर हम पैरेलली कंसीडर करते हैं. सो जिसकी वजह से alternate interior angle बन जाते हैं और ये हमेशा के हो जाते हैं आपस में इक्वल. सो यहाँ पे बेटा आपके पास बिल्डिंग की हाइट दी थी 7 मीटर, ए बी डी ई दोनों इक्वल्स होंगी बिकॉज दोनों हाइट्स यहाँ तक तो सेम ही रहेंगे ई तक. सो इससे हमने ले लिया 7 मीटर एज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. सी डी is equal to h we have taken as the height of the tower and BE is equal to AE with is equal to x, ये हमने ले लिया डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टॉवर. नाउ एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना दिया था 60 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया था एंगल EAD 45 डिग्री. बट EAD एंड ADB आर इक्वल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेटिव एंगल. सो ADB भी आपके पास कितना आ गया 45 डिग्री. ओके. सो बेटा अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द टॉवर यानी h क्या है. सो इफ़ वी स्टार्ट विद द राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ABD, राइट ट्राइंगल ABD में बेटा BD आपके पास नहीं है. अगर BD को आप निकालो अपॉन AB, BD अपॉन AB दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज cot of 45 डिग्री, cot of 45 डिग्री. सो BD फाइंड करना आपको विच इज़ x. AB 7 मीटर है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है. सो यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया 7 मीटर. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ इफ वी गो एज इन द सेम वे इन द राइट ट्राइंगल AEC, सो इन राइट ट्राइंगल AEC वंस अगेन CEH -7 है, उसकी वैल्यू आपके पास नहीं है. AEX है, वो आप निकाल चुके हो 7 मीटर. तो आपको जो निकालना है उसे ऊपर लिखते हैं. C जो निकाल चुके हो AE उसे नीचे ले लिया हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60. सो CH -7 AE is x and the value of x is 7. If x is 7 then A is 7 meter. Let it be question number 1. Tan 60 which is root 3. So this is what we have used from first. So h minus 7 is equal to 7 under root 3. It gives h is equal to 7 under root 3 plus 7. It gives h is equal to 7 into under root 3 plus 1. Therefore हाइट ऑफ बिल्डिंग, सॉरी हाइट ऑफ टावर. तो बेटा पूरे टावर की हाइट जो है वो आपके पास h थी, वो कितनी आ गई
7 into under root 3 plus 1 meter, which is the required height of the tower. ओके, सो बेटा ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12. अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच बेटा.